اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 اور 250 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پس جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نہر سے آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جس نے اسے پینے کی خواہش نہ کی سوائے چلو بھر پانی کے جو وہ اپنے ہاتھ سے لے لے وہ مجھ سے ہوگا۔ پھر سب نے اس میں سے جی بھر کر پانی پیا سوائے چند ایک کے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر کو عبور کر گئے تو کہنے لگے، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر یقین رکھتے تھے وہ بولے، بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے ساتھیوں کے اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ناظرین، یہ جالوت کون تھا؟ قوم عمالقہ کا سردار جالوت، اسے جولیت بھی کہتے ہیں، 10 فٹ قد کا یہ جوان بڑا ہی طاقتور تھا۔ اسے دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ بائبل کی روایتوں کے مطابق جالوت کی ڈھال 3 من وزنی تھی۔ چہرہ چھوڑ کر اس کا سارا جسم زرہ میں محبوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کڑیل جوان اس کے لشکر میں موجود تھے، مگر سب کافر اور مشرک تھے۔ حضرت طالوت کا لشکر مختلف قبائل پر مشتمل تھا جو جنگ کے جوش اور جذبہ انتقام سے سرشار ان کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان میں ایمان اور نظم و ضبط کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے وہ نافذ شدہ ڈسپلن کی پابندی نہ کر سکے اور ہر مصیبت کے وقت اکثریت نے اپنے امیر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجہ میں ان میں کم ہمتی آ گئی۔ محاذ جنگ میں کامیابی کے لیے چند چیزیں نہایت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، دوسری ڈسپلن کی پابندی کرنا، اور تیسرا تکالیف میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا۔
اور चौथी बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला से कामयाबी की दुआ करना। नाज़रीन, हजरत तालूत अल्लाह ताला के हुक्म से एक लश्कर जर्रार से टक्कर लेने जा रहे थे। न सिर्फ उस लश्कर का सरबराह बहुत ताकतवर था बल्कि उसके फौजी भी यकीनन बहुत ताकतवर थे। लिहाजा ज़रूरी था कि हज़रत तालूत अपने इन नौ आमोज लश्करियों को डिसिप्लिन में भी सिखाते और उनकी आजमाइश भी करते। सख्त गर्मी का मौसम था, प्यास सबको लगी हुई थी और आगे एक नहर थी। इस से मुराद दरियाए उर्दन या कोई और नदी या नाला भी हो सकता है जिसके पार दुश्मन से मार का पेश आना था। चुनाचे आजमाइश के तौर पर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदिही। अल्लाह ताला तुम्हारी एक नहर से आजमाइश करने वाला है, बस जिसने उससे पानी पिया वो मुझसे नहीं होगा और जिसने उसे पीने की ख्वाहिश न की सिवाय चुल्लू भर पानी के वो अपने हाथ से ले वो मुझसे होगा। यानी जो लोग हकीकत में मेरे साथी हैं वो इस नहर से पानी नहीं पिएंगे, और अगर किसी को शदीद प्यास लगी हो और पानी पीना ज़रूरी हो तो वो अपने हाथ से चुल्लू भर पानी पी सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये अताअत अमीर, डिसिप्लिन और तकलीफ में साबित कदमी और सब्र का कड़ा इम्तहान था। फशरबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, बस सब ने पानी पी लिया सिवाय चंद एक के। ये 80,000 का लश्कर था। इन हजारों लोगों में से सिर्फ चंद सौ यानी रवायत के मुताबिक 313 ने इस हुक्म पर अमल किया, बाकी सब पानी पर पिल पड़े। इसका नतीजा यह निकला कि जब ये लोग दुश्मन के मद्दे मुकाबल हुए तो कहने लगे, फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूत व जुनूदी। और जब उनका और ईमान वालों का दुश्मन से सामना हुआ तो वो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं रही, जिससे इनका निफाक जाहिर हो गया। चुनांचे हजरत तालूत ने तमाम नाफरमानों को वापस भेज दिया। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। लेकिन जो अल्लाह ताला से मुलाकात करने पर यकीन रखते थे बोले, बहरहाल छोटी जमायतें गालिब आई हैं बड़ी जमायतों पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबिरीन के साथ है। नाज़रीन, ईमान वालों की एक कलील तादाद जो लश्कर तालूत में बाकी बच गई थी वो दुश्मन की कसीर तादाद देखकर फितरी तौर पर घबरा गए। लेकिन उनमें से जिनको ये यकीन था कि एक ना एक दिन उनको मरना है और अपने रब से मुलाकात करनी है, वो पुकार उठे। बारहा ऐसा हुआ है कि छोटी जमायतें बड़ी जमायतों पर गालिब आई हैं। ये वो हकीकत है जो तारीख में बार बार दोहराई जाती है। हक वाले हमेशा ही अकलियत में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मदद के सहारे ताकत, साबित कदमी और सब्र के साथ जब वो हक की राह पर चल पड़ते हैं तो अक्सरियत ज़ेर हो जाती है। इनका खासा ये है कि वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए हस्ब इस्ताअत ज़ाहिरी असबाब से फ़ायदा उठाते हैं और सब्र और सलात के ज़रिया उसकी मदद के तालिब होते हैं, और यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, जब वो जांबाज सर हथेलियों पर रखे मैदान में निकले तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ फैलाए।
वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के आमने सामने हुए तो अल्लाह ताला के हुज़ूर कहने लगे, ऐ हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा और हमें साबित कदम रख और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। यानी उन्होंने अपने लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ की और फिर दुश्मन की शिकस्त का सवाल किया। इससे यह भी मालूम हुआ कि फतह और नुसरत हासिल करने के लिए सब्र और साबित कदमी शर्त अव्वलीन है। जो कौम या फर्द मैदान जहाद में या मैदान अमल में इस शदायद और तकालीफ के सामने सब्र व इस्तकामत से काम लेता है वही कामयाब होता है। नीज़ ये भी वाज़ेह हुआ कि मोमिन के पास सबसे मुअस्सर हथियार दुआ है, जिसका इसके दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ताहिरा भी यही रही है। वो ऐसे मौक़ों पर जंगों में हमेशा अल्लाह ताला से अपनी फतह व कामयाबी के लिए दुआ किया करते थे और यही खासा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का भी था। और मोमिन हमेशा इसी तरह किया करते हैं। इस्लामी फ़ौजें हमेशा यही करती हैं, दुआ मांग के अपना मार्का के लिए निकलती हैं और मार्का के दौरान भी दुआएं करती रहती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियों कामरानी से हमकिनार करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुश्मनों पर फतह व कामयाबी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।